Friends, welcome to today computer network virtual classes. As usually, I thankful to all my DGT staff and IT cells providing this type of to conduct online or virtual classes on these lockdown days. I also thankful to NIMI staff members, Director Dingra sir, and as well as all the technical staff who are supported in the back end to technically support to success these online classes. My special thanks to NST Noida, HOD madam, Swati Sej madam, and principal Sasha Mathur madam, and all my staffs to allow me to conduct these virtual classes, online classes. And my special thanks to all my students, DTP, DTPO, and COPA, CSA, who are joining today by this class. Once again, I inform to all these participants, all my trainees, मैं दोबारा स्टूडेंट्स के लिए जो आज ज्वाइन किया हुआ है सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं आता हूँ ये फंडामेंटल क्लास है नेटवर्किंग का। मेरे मुख्य उद्देश्य डीटीपी सीएसए के अंदर नेटवर्किंग का प्रिंसिपल्स बेस समझाने के लिए सीएस एक अलग सेपरेट सब्जेक्ट है। सो आई डोंट but my aim is I want to cover fundamentals of the networking, which are covered DTP, DTPO, CITS. Another of the trainees are participant without proper dress or some proper preparation. Some people are sitting in proper order, or some people some students are some take dress and they are directly appeared in. It's not a good, because in these virtual classes India students are joined boys, so the trainees maintain a proper decorum, the proper dress and proper. You feel like this is an actual class. You respect the classroom environment for students. मैं सारी विद्यार्थी स्टूडेंट से मैं अनुरोध कर रहा हूँ, मेरा विनती रिक्वेस्ट ये है, कुछ विद्यार्थी लोगों मतलब बिना प्रिपरेशन से, बिना प्रॉपर ड्रेस से, बिना प्रॉपर तैयारी से ये क्लास को अटेंड करके कैमरे का सामने आ रहा है। कुछ लोग बातें तरह से, कुछ लोग ब्रशिंग करके लाइक, कुछ लोग मतलब बनियान वगैरह से, तो ये सही तरीका नहीं है। आप प्रॉपर ड्रेस में, प्रॉपर वे में, प्रॉपर प्रिपरेशन का साथ कृपया मेहरबानी से बैठिए। अगर आपका पास समय नहीं तो पहले प्रिपेयर करके आप कृपया मेहरबानी से डिसिप्लिन के साथ बैठिए। टू honor your teacher as well as departments and your core students. I think आपको you are understand. मैं आशा रखता हूँ आपको समझ में आया होगा। Okay. So now friends, remember all these things. These virtual classes are conducted by NIMI department. आप लोग कृपया मेहरबानी से ध्यान रखिए हमेशा ये whose faculties are conducted by Zoom app. These are everyday lecture. Please remember mind. कृपया मेहरबानी किए ये सारे virtual classes निमी डीजीटी डिपार्टमेंट तरफ से रिकॉर्डिंग, तो प्लीज आप कृपया मेहरबानी से डिसिप्लिन का साथ। So my name is D. Mobile number is 9015983271. Email ID is guruanvita@gmail.com. National Skill this lecture was delivered from National Skill Training Institute for Women, Noida. In last three classes, we have discussed about what is meant by the network and what are the various applications of the networks and types of networks, client-server network and peer-to-peer networks, as well as in details
client server and as well as in last class we are discussing the networking type. हम पिछले मतलब नेटवर्किंग से क्या फायदा है, नेटवर्किंग क्यों आपस में कंप्यूटर्स को क्यों जोड़ना है, अलग अलग दो तरीके नेटवर्क क्लाइंट्स में और पेयर टू पेयर नेटवर्क्स के बारे में, एप्लीकेशंस के बारे में क्या है डिस्कस किया है, आपको समझ में आया होगा। साथ साथ जो लास्ट क्लास सैटरडे शनिवार दिन में सेम समय पर हम थोड़ा बहुत नेटवर्किंग टाइप्स के बारे में भी डिस्कस किया है, लेकिन समय समाप्त होने के कारण से ये नेटवर्किंग टाइप्स पूरा कंप्लीट कवर नहीं हो पाया। I want to give a little bit recap. उसी कारण से मैं आज का क्लास में दोबारा 5-10 मिनट के अंदर तो शनिवार हमने बातचीत किया है नेटवर्किंग टाइप्स का बारे में, वही रिकैप करना चाहता हूँ। फिर आफ्टर फिनिशिंग ऑफ दिस नेटवर्किंग टाइप्स, ये नेटवर्किंग टाइप्स का लेसन समाप्त होने के बाद we will enter into the various networking components or devices. उसके बाद हम नेटवर्किंग कंपोनेंट्स और नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे। दिस इज द टुडे माय शेड्यूल, आज का शेड्यूल ये है। तो फ्रेंड्स, नेटवर्किंग टाइप्स लास्ट टाइम आल्सो वाज क्लियरली मेंशन्ड mistake or confusion. So networks are principal according to their working principles, client server network and peer to, but here these networks are according to area, availability of the room space, office or office, एक कंपनी, कार्यालय, स्कूल, यूनिवर्सिटीज, अलग अलग उनका जगह का अनुसार आपस में कंप्यूटर्स को जोड़ने का तरीका है, ये अलग अलग नेटवर्किंग टाइप्स। So friends, here the most popular computer networks are local area networks, metropolitan area networks, and local area networks. A LAN connects over a distance. ये कम स्पेस के अंदर आपस में नेटवर्क्स को अगर जोड़ने का LAN, local area network, confined to small geographical areas, जगह के अंदर एक रूम, नहीं तो एक बिल्डिंग या तो एक कैंपस के अंदर 2-3 बिल्डिंग्स के अंदर आपस में कंप्यूटर्स को नेटवर्किंग में जोड़ने का तरीका है ये LAN, local area network. One building or office contain a few small LANs. A LAN will span a group of nearby buildings. That means if it is an industry, factory or some university or colleges, they have more than one buildings. एक इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एक स्कूल, प्राइवेट स्कूल मान लीजिए, और यूनिवर्सिटी के अंदर सारे कैंपस एक ही बिल्डिंग के अंदर तो होता नहीं, सारे स्टूडेंट्स को पता है, मालूम है ये बात। तो एक से अधिक बिल्डिंग्स के अंदर कैंपस एक ही है, लेकिन डिपार्टमेंट्स अलग अलग होने के कारण से कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, मेट्रोलॉजी, एरोस्पेस, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर देयर. Along with this technical departments, some establishment department, store purchase department, stores, accounts, like other departments also there. So every department has nowadays, on all departments they are using the computers. They want to use the resource of the computers and they can share the information. प्रति कार्यालय और ऑफिस, इंडस्ट्री, कंपनी, फैक्ट्रीज के अंदर अलग अलग जो बिल्डिंग्स में डिपार्टमेंट्स के अंदर जो जुड़ा हुआ कंप्यूटर्स को भी आपस में पूरा डिपार्टमेंट के अंदर, पूरा कंपनी, फैक्ट्री के अंदर इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए और कंप्यूटर्स का जो रिसोर्सेस यानी प्रिंटर, स्कैनर वगैरह इत्यादि चीजों को काम में लेने के लिए या इंटरनल कम्युनिकेशन, मेल्स वगैरह करने के लिए आपस में पूरा को, सारे कार्यालय को नेटवर्किंग के अंदर जोड़, तो इसलिए a group of nearby buildings.
के अंदर एक से अधिक बिल्डिंग्स के अंदर जो लोकल एरिया नेटवर्क को भी आपस में जोड़ते रहते हैं। LAN has a single IP subnet, network and subnet in a limited space, कम जगह के अंदर नेटवर्क को सिंगल IP सबनेट से ऑपरेट कर सकते हैं। LANs are typically owned, controlled and managed by a single, because these LANs are located in a small space. We have discussed already cells also. So due to that reason, मतलब ये LAN कंस्ट्रक्ट किया गया नेटवर्क से केवल एक ही इंसान ओनर ऑपरेटर हो सकता है, टेक्निकल ऑफिसर हो सकता है, टेक्निकल असिस्टेंट हो सकता है, जो भी बंदा IT पर्सन हो सकता है, वो लोगों क्या करते हैं, इस LAN को कंट्रोल करते रहते हैं। मैनेज बाय सिंगल, दे आर यूज्ड primarily Ethernet and token ring network, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा। LAN का अंदर इंटरनेट को काम में लेता है आपस में जोड़ने के लिए, और कॉन्सेप्ट और फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरनेट कनेक्शन। I will discuss further details about the LAN. हम LAN के बारे में और डिस्कस करेंगे। A LAN spans limited geographical area, ये तो हमने बताया है। छोटा-छोटा जगह के अंदर कंप्यूटर्स को आपस में नेटवर्किंग में जोड़ने का तरीका ये LAN है। LAN are usually confined to one building or a group of buildings. एक बिल्डिंग के अंदर कंप्यूटर्स को या तो आपस में एक ही कैंपस के अंदर 2-3 बिल्डिंग्स LANs को भी आपस में एक LAN में जोड़ सकते हैं नेटवर्क्स को। The most common type of local area network is called Ethernet. LAN के अंदर Ethernet concept से हम नेटवर्क्स में जोड़ते रहते हैं। तो LAN से what are the uses and advantages of the LAN? LAN असली में क्या करता है? LAN से हमें क्या फायदा है? एक कंपनी, फैक्ट्री, एक इंडस्ट्री, कार्यालय के अंदर शेयर द प्रिंटर्स, एक बिल्डिंग में प्रिंटर है, दूसरा बिल्डिंग से प्रिंट कमेंट दे सकते हैं। अगर एक बिल्डिंग के अंदर फर्स्ट 1 to 3 फ्लोर्स है, n फ्लोर्स, पर एक फ्लोर से दूसरा फ्लोर में अगर कंप्यूटर है तो any floor person can give the printing. Access local file servers with software and data. Last class I discussed, if it is a big industry, university, engineering college, they can maintain their local servers also to centralize their information. The entire department, all departments data in a computer called a server, they can maintain departmental servers local. So by all the department people can share the files, softwares और data. मेरे कहने का मतलब ये है, एक कार्यालय, एक इंडस्ट्री, यूनिवर्सिटी, बैंकिंग वगैरह है, इसमें क्या होता है, एक से अधिक बिल्डिंग्स है, तो एक से अधिक फ्लोर्स के अंदर काम करने वाले लोग नहीं, अपना कंपनी, फैक्ट्री, इंडस्ट्री क्या करेगा, अपना मुख्य डाटा को सेंट्रलाइज करके कंप्यूटर के अंदर हमेशा सेव करने के लिए सेव करते हैं हम सर्वर। तो सर्वर के अंदर जो स्टोर किया गया डाटा को आपस में सारे डिपार्टमेंट्स को भी शेयर करने के लिए LAN आपस में कंप्यूटर्स को LAN के साथ जोड़ते रहते हैं। तो एक्सेस लोकल फाइल सर्वर्स विद सॉफ्टवेयर एंड डाटा। लोकल सर्वर मींस एक इंडस्ट्री, कंपनी, एक फैक्ट्री के अंदर सर्वर का अंदर स्टोर किया गया समाचार को भी, डाटा को, सॉफ्टवेयर को भी अधिक लोगों मींस अधिक ऑपरेटर्स काम में ले सकते हैं। एक्सेस द इंटरनेट को भी काम में ले सकते हैं। यानी इंडिविजुअल ब्लॉक वाइज जोड़ने की वजह से जहां पर सर्वर सेटअप है या तो नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है, उस जगह से अलग अलग बिल्डिंग्स को, अलग अलग फ्लोर्स को इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, स्टोर प्रोवाइड कर सकते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी। दिस इज द लोकल एरिया कॉन्सेप्ट विद सर्वर। ये वर्क स्टेशन है, एक सर्वर है, इंटरनेट कनेक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ LANs, कॉन्फ़िगरेट स्मॉल एरिया। कंक्लूजिंग, LAN का मतलब क्या है? एक छोटे एरिया के अंदर आपस में कंप्यूटर्स को जोड़ने का तरीका LAN है। इट कनेक्ट्स सेवरल डिवाइसेस ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 5 to 10 किलोमीटर। हाई स्पीड, डिस्टेंस कम होने के कारण से मींस एक्चुअली LAN के अंदर डाटा थोड़ा हाई रेट स्पीड से डाटा ट्रांसफर होता रहता है। लो एरर रेट्स, बाकी नेटवर्क से कोई मतलब नहीं, एंट्री नहीं होने के कारण से एरर्स कम होगा इसके अंदर। डाटा एंड हार्डवेयर शेयरिंग बिटवीन यूजर्स, कंप्यूटर का हार्डवेयर, प्रिंटर, स्कैनर, फ्लोटर्स वगैरह और हार्ड डिस्क के अंदर जो फाइल्स भी शेयर कर सकता आपस में यूजर्स। ऑपरेट्स एट स्पीड रेंजिंग फ्रॉम
10 मेगाबाइट्स पर सेकेंड टू 100 मेगाबाइट्स इतना स्पीड से हम लोकल एरिया नेटवर्क को काम में ले सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क कंप्यूटर मस्ट हैव एन ईथरनेट interface card. Without this NIC interface, means Ethernet card, we cannot connect the computer into LAN or network. ये NIC बिना NIC कार्ड के अलावा Ethernet कार्ड के अलावा हम उस कंप्यूटर को नेटवर्क में जोड़ नहीं सकते, अगर LAN के अंदर भी जोड़ नहीं सकते। ठीक है, so this is the NIC card. These are two types, external and internal. A serial port है, this serial port will be connected to the motherboard, that particular short slot. Then CPU backend, this connector will be pure. So here we are connecting these cables, RJ45 connector with the Cat5 and Cat6 cable. We are connecting a LAN into a LAN. मेरे कहने का मतलब क्या है, कंप्यूटर के अंदर बिना NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और इथरनेट से, बिना ये NIC कार्ड से हम कंप्यूटर को LAN में यानी नेटवर्किंग में जोड़ नहीं सकते। तो इस LAN कार्ड का साथ Cat6 Cat5 केबल है ना, RJ कनेक्ट का सहायता से क्रिम्पिंग करके कनेक्ट करके फिर अपना CPU का बैक एंड में जो NIC कार्ड का जो कनेक्टर है उसका साथ जोड़ते हैं। Ethernet cables, that is Cat5 and Cat6 cables, category 5 and Cat6 are used to connect the computer to the hubs and switches. ठीक है, ये नेटवर्क हब है, तो इससे हम अपना कंप्यूटर को जोड़ रहे हैं। ये CPU का बैक पैनल, दिस इज द येलो कलर जो स्लॉट दिखाई दे रहा है, ये NIC कार्ड का पोर्ट है। इस पोर्ट के सहायता से देखिए येलो कलर वायर है, तो ये हब है, तो आपस में एक LAN में जोड़ने के लिए लोकल एरिया नेटवर्किंग। सो अपना लोकल कंप्यूटर मीन्स एक रूम का अंदर एक लैब में, कंप्यूटर लैब, CSA लैब, एनी लैब और एनी डिपार्टमेंट, एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन और अकाउंट सेक्शन और ट्रेनिंग सेक्शन, सो दीज कंप्यूटर्स अगेन कनेक्टेड टू द स्विच और आपस में इस डिपार्टमेंट के अंदर स्विच नहीं तो इस रूम का अंदर एक स्विच हब होगा, उसका साथ प्रति कंप्यूटर को ये कैटेगरी 5 और कैटेगरी 6 या Cat6 और Cat5 केबल का सहायता से नेटवर्किंग के अंदर जोड़ते रहे। Second one is MAN, Metropolitan Area Networks. Last class also discussed it. Metropolitan Area Networks extends over a metropolitan area like a city or town. अभी तक हमने किसके बारे में डिस्कस किया, LAN के बारे में डिस्कस किया। So local area network, it will cover the small short distance, small areas within a campus, more than one building, so that is called as a LAN. LAN के बारे में हमने ये बातचीत किया, कम जगह के अंदर एक कार्यालय में एक रूम के अंदर या तो अलग अलग फ्लोर्स के अंदर कंप्यूटर्स को, नहीं तो अलग अलग बिल्डिंग्स के अंदर कंप्यूटर्स को एक ही कार्यालय के अंदर आपस में कंप्यूटर्स को एक नेटवर्किंग के अंदर जोड़ने के लिए LAN को काम में लेते हैं। इसीलिए ताकि लोकल के अंदर डाटा को के लिए सर्वर नहीं तो एटलीस्ट एक कंप्यूटर पर बातचीत करने के लिए, नेटवर्क इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए LAN इतना स्कैनर्स फ्लोटर्स काम में ले सकता है। एक रूम में या तो एक जगह पर एक बिल्डिंग में एक कंप्यूटर का साथ स्कैनर, फ्लोटर और प्रिंटर, कलर प्रिंटर वगैरह जोड़ा हुआ है, तो उसी स्कैनर, प्रिंटर, कलर प्रिंटर, फ्लोटर को बाकी यूजर्स भी अलग अलग बिल्डिंग से भी ही काम में लेने के लिए आपस में एक नेटवर्किंग यानी जोड़ता रहता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स, इट विल कवर्स एंटायर सिटी और टाउन। एक सिटी का अंदर, एक टाउन का अंदर नेटवर्क्स को ये है ये मैन। व्हाई यू आर यूजिंग दिस मैन? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू metropolitan cities, in urban areas, within a district, एक जिला, every state capital, Delhi, Bangalore, Hyderabad, Bangalore, other metro cities are having higher, it means departments like engineering colleges or some factories, industries, all these are established in metro. For people convenience purpose, metro cities के अंदर रहने वाला मीन्स जनता के लिए, लोग के लिए आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए उस सिटी के अंदर जो डिपार्टमेंट्स के अंदर जो लैंड्स, लोकल एरिया नेटवर्क्स को आपस में एक नेटवर्किंग का साथ जोड़ते हैं,
तो उसी को कहते हैं हम मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया। If you want to access the data, particular hospital or particular, suppose if your parents want to seek the to getting admission into as a ward a child in a particular college, medicine or engineering, pharmacy, whatever it may be, एक पेरेंट अपना बच्चे को एक कॉलेज एक स्कूल के अंदर एडमिशन लेते समय पर उस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर इसका रिक्वायर्ड ब्रांचेस, स्ट्रीम, यू ग्रुप वगैरह है नहीं, अवेलेबिलिटी, नोटिफिकेशन कब निकलेगा, फिर या तो फॉर्म कब भरना है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, हॉस्टल फैसिलिटी है ही नहीं है, इत्यादि सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से अपने घर पर बैठ के ही एक्सेस करने के लिए एक सिटी के अंदर सारे डिपार्टमेंट्स को आपस में एक नेटवर्किंग का अंदर साथ एक नेटवर्क के साथ जोड़ते हैं, वही नेटवर्क है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इट इज सेट अप बाय कनेक्टिंग द लोकल एरिया नेटवर्क्स ऑफ द सिटी और टाउन। अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज, कार्यालय के अंदर नेटवर्क को आपस में जोड़ते रहते हैं। It is ideal for the people of a particular region to share data or information with dedicated or higher performance hardware। ये तो ये चीज मैंने बताया, एक सिटी के अंदर, एक एरिया के अंदर रहने वाले लोग शेयर करने के लिए एक अलग टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ नेटवर्क है। सो डेडिकेटेड और हायर परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर नेटवर्क कंसेप्ट का साथ जोड़ता रहता है। A man connects an area larger than a LAN but smaller than WAN। लोकल एरिया नेटवर्क ज्यादा एरिया को कवर करते हैं लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क से कम है। What is meant by wide area network WAN? We will discuss within short। नेक्स्ट हम WAN के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेशन ऑफ द, सॉरी ऊपर चेंज नहीं किया मैंने, ये मैन एक सिटी का सारे डिपार्टमेंट्स को आपस में साथ जोड़ने का है। नेटवर्क कंक्लूजन, वाइड एरिया नेटवर्क कवर्स लॉन्ग एरिया, लोकल एरिया और शॉर्टेस्ट एरिया। वाइड एरिया geographical area and it is mainly set up by telecommunication satellite cables। Big organizations like banks communicate with their branches and customers through WAN। Actually होता है क्या है, wide area network covers means first of all you are for the LAN shortest, then MAN entire city or town, then WAN means interstates, one state network connected to other state but entire country will be connected like country to country, so that is called as a WAN, wide area network। It is mainly set up by the telecommunications lines or cables with the satellites। Big organizations like banks, suppose bank department, every state and every district, even mandals means tahsils also they are having branches। अगर बैंक डिपार्टमेंट के बारे में हम बातचीत करेंगे, रेलवे वगैरह के अंदर प्रति जिला में मंडल के अंदर भी बैंक्स है, तो अपना ब्रांचेस स्टाफ का साथ में तो ब्रांच को शेयर करने के लिए बिग इंडस्ट्रीज, तो इस सारी क्या करते हैं आपस में, ये WAN का द्वारा ही जुड़ जाता है। मैंने लास्ट क्लास में बताया है के अंदर NIC नेटवर्क इंफॉर्मेशन से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर का अंदर है। इसमें क्या है, प्रति जिला का अंदर अलग अलग तहसील और गांव का इंफॉर्मेशन तहसील से जिला कलेक्टर ऑफिस में कलेक्ट करेगा, फिर स्टेट CMO ऑफिस तक उस डाटा को शेयर करते हैं, फिर स्टेट से फिर सेंट्रल। तो थ्रू दिस WAN, wide area networks, by using this WAN they are conducting video conferences, this seems to see PM or state CM to district collectorates, SPs, collector and magistrate, or some other departments peoples also। So that is the advantage of the WAN। Internet that we use is also a WAN। WAN के अंदर भी इंटरनेट जरूरी है, इंटरनेट से ही हम काम में लेते हैं। ग्लोबल है, entire world, the WAN will cover। A wide area network exists over a large area, larger physical distance। Data travels through telephone or cables, lines। पहले पिक्चर तीसरा ना, usually requires a modem। इसके लिए एक modem और
स्विच अगर जरूरत पड़ता है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क इन द इंटरनेट। तो वर्ल्ड में से द्वारा क्या ये वैन द्वारा ये वाइड एरिया नेट व्हाट फिजिकल डिस्टेंस, दोबारा रिपीट करना है। इट इज a geographically displayed collection of lands is called rotor connects the land, बीच में रोटर्स यूज करते रहते हैं ये दूसरे नेटवर्क्स के जोड़ने के लिए रूटिंग करते रहते हैं नेटवर्क कंपोनेंट्स। In IP networking, the router maintains both a LAN address and a WAN address. Most WANs are not owned by any one organization. LAN को एक organization, एक ही person, owner or organization can organize. But here, most WANs are not owned by any one organization, but rather existing under collective and distributed ownership and management. एक कलेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अंडरस्टैंडिंग के साथ एक ओनरशिप के साथ क्या करेगा, ये एक से अधिक ऑर्गेनाइजेशंस इस वैन को मेंटेन करते हैं। वैन्स यूज टेक्नोलॉजी लाइक एटीएम, फ्रेम रिले एंड X.25 फॉर कनेक्टिविटी। एज ए टीचर आई वांट टू गिव एन एडवाइस हियर। मैं एक टीचर होने के बावजूद आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ। जो भी मैं क्लास मतलब ले रहा हूँ ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो खींच लीजिए। अब यू आर गेटिंग ए न्यू वर्ड, ए टर्म, a near technical word, then you can search this remaining data, backend information, detailed information through internet. You are the IT peoples. Every person nowadays having a touch phone, smartphone. In additional information purpose, you can Google it. आप इंटरनेट से भी बुक से भी आप इसका backend information collect कर सकते हैं। So this class we want to cover the basic things only. To our aim is, our motto is to cover our syllabus and to clear all India of COPA, DTP, DTP, OCS. Area networks, other area networks भी दे, LAN, MAN, WAN का अलावा storage area networks, system area networks, server area networks, small area networks, personal area networks, desk area networks, controller or cluster area networks. The Bluetooth you are adding devices, laptop, desktop, mobile, like that. So personal area networks. Okay, so you can search it the information regarding this. But main in everywhere they are asking LAN, MAN, WAN. But according to technology, all these are introduced. So this is the LAN and WAN. ये है LAN और WAN में इस आप लोगों के लिए। Then friends, we enter into the next topic. So that is called as network components. If anybody wants some details or some notes, then I can share it to your email or WhatsApp. PA notes also share. Okay. After finishing up this class, you can send a simple text message. Friends, now we will enter into the network components. Or madam, are you getting this sharing? I think you people are received watching this. Good page move chestuna. Pictures away. Okay, friends. Network components. Network devices are components used to connect computers and other electronic devices together in a network to share files or resources like printers, plotters, scanners, etc.
Up we have number of computers, printers, devices, scanner, floater. If you want to connect all these devices into a net, then that time we need some components. तो हमारा पास suppose 10 computers, 25 computers, printers, floaters, scanners, आपस में हम इसको नेटवर्किंग के साथ जोड़ना चाहते हैं, नेटवर्किंग में जोड़ना चाहते हैं। तो इस डिवाइसेस को नेटवर्किंग में जोड़ने के लिए भी कुछ डिवाइसेस जरूरत है, उनको कहते हैं हम कंपोनेंट्स और डिवाइसेस कहते हैं। नेटवर्क डिवाइसेस आर नेटवर्क कंपोनेंट्स यूज्ड टू connect computers and other electronic devices together in a network. For what purpose? To share files or resources like printer, floaters. These things were already discussed. Network आपस में नेटवर्किंग में क्यों जोड़ते हैं? कंप्यूटर्स का रिसोर्सेस, प्रिंटर, फ्लोटर, स्कैनर्स वगैरह शेयर मतलब काम में लेने के लिए एक साथ, और डाटा शेयरिंग, फाइल्स वगैरह भी, इंटरनेट शेयरिंग कर सकते हैं हम, मेल्स वगैरह कम्युनिकेशन के लिए। तो आपस में कंप्यूटर्स साथ साथ डिवाइसेस एक नेटवर्क के साथ जोड़ने के लिए ये डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस या नेटवर्क कंपोनेंट्स को यूज करते हैं, काम में लेते हैं। With the help of the network components or network devices, we are all the computers and electronic devices into a network. नेटवर्क डिवाइसेस या नेटवर्क कंपोनेंट का सहाय से हम अपने पास जो पड़ा हुआ कंप्यूटर्स को, कंप्यूटर डिवाइसेस को, प्रिंटर, स्कैनर, फ्लोटर्स को आपस में एक नेटवर्किंग में जोड़ते हैं। So many types of components are there, devices are there, बहुत सारे नेटवर्क डिवाइसेस आर देयर। सिलेबस में 2-3 चीज दिया है, DTPO में और कोपा में। So these are the common uses of the network components. Network cards, modem, hub, switch, router, bridge, gateway, etc. Receivers. So these are the network component devices. I think you people are followed my lecture. आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो नेटवर्क कार्ड्स, एनआईसी कार्ड वगैरह मैंने कहा, और मोडेम, हब, स्विच, रूटर, ब्रिज, गेटवे इत्यादि चीजों को हम नेटवर्क डिवाइसेस या नेटवर्क कंपोनेंट्स कह लेते हैं। लेकिन नेटवर्क कार्ड्स, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एनआईसी, I already seen this pictorial representation. You people have already seen. तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है? एक तो अटैच टू द एक्सटर्नल पोर्ट, मदरबोर्ड के ऊपर एक्सटर्नल पोर्ट्स जो मैंने भी दिखाया, अभी भी दिखाऊंगा। तो उसके साथ मतलब क्या, ओल्डर डेज में क्या होता थे, विदाउट एनआईसी कार्ड मींस नेटवर्क, बिना नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से भी सीपीयू कंप्यूटर मार्केट में बेचते थे। जिस बंदे को जरूरत है कंप्यूटर्स को आपस में नेटवर्किंग में करने, नेटवर्किंग में जोड़ के फिर काम में लेना चाहते हैं, वो लोगों क्या करते थे, एनआईसी कार्ड अलग खरीद करके फिर अपना सीपीयू मींस मदरबोर्ड के साथ जोड़ते थे। दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल पोर्ट, पीसी कार्ड, इंटरनल और इंटरनल नेटवर्क कार्ड। सो दीज आर द एनआईसी कार्ड्स दैट आर यूज्ड टू communicate or connect your PC, your computer. So without this NIC, we cannot able to connect the network in a network. तो मैंने डिस्कस किया, आपको समझाया, बिना NIC कार्ड से हम, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से हम आपस में अपना कंप्यूटर को, नहीं डिवाइस को फिर एक नेटवर्क के अंदर जोड़ नहीं सकते। इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए LAN कार्ड यूज्ड टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू नेटवर्क। इसको LAN कार्ड भी कहते हैं। Nowadays these are by default connected to the motherboard, inbuilt है। पहले एक्सटर्नली मैंने कहा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा, मेरे पास है। लेकिन इनबिल्टेड मींस इज NIC नेटवर्क इंटरफेस कॉन्सेप्ट इज इनबिल्टेड मींस इट विल कम्स विद बोर्ड ओनली, ऑन बोर्ड। ये अलग सेपरेट कार्ड खरीद करके इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। जब पीसी यानी कंप्यूटर खरीद करते समय पर नाउअडेज इन ऑल कंप्यूटर्स इनबिल्टेड NIC इंटरफेस पोर्ट कार्ड आप देख सकते हो सीपीयू का बैकएंड यही है, NIC card. This is the serial port. With this, we are connecting this NIC card into our motherboard. These are the connectors we already discussed. So this is the physical connection of the network. A modem short for modulator and demodulator.
is a device that converts the digital signals generated by a computer into analog signals that conversational phone. Actually, if you understand the modem, electronic peoples are having, but as the IT persons, DTP, DTPO, and CSCA, in older days, what happened? The internet are connected by telephone lines only. In those days, one of the middle device, this modem is used to transmit these signals. Computer signals, these digital signals are passed on to the telephone lines, BSNL, MTNL, whatever it may be. Then after that, and the destination computer, they are having another modem. That modem can receive this digital signal information which are transmitted to the telephone lines as the analog signals. Then after receiving these analog signals, again this modem will be translated into digital signals, and that digital signals will be reach computer, means destination to your target computer. मैं दोबारा हिंदी में समझाना चाहता हूँ फ्रेंड्स. पुराना मतलब older days, 15 years, 20 years back, what happened? First of all, whenever the internet concept is introduced in the world, maximum in those days, उन पुराना दिन में क्या करते थे, 15-20 साल पहले कंप्यूटर्स को नेटवर्किंग में यानी इंटरनेट के साथ जोड़ने के लिए टेलीफोन लाइन को ही काम में लेते थे, और कंप्यूटर को बीच में नेटवर्किंग में लेने के लिए एक मॉडेम डिवाइस को काम में. का मतलब ये है फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, encoding, decoding, encrypted, decrypted, like this. So here signal transferring. What is the main use of this modem is? Modem is the mediator. It can convert the digital signal into analog signals, again the analog signals into digital signals. That is the main task of the modem. यही है modem का मुख्य उद्देश्य, काम भी है. जो computer can send the digital signals, these digital signals converted into analog signals, these analog signals are transmitted into telephonic lines, then these information when it reach to the target computer destination, अगर signals telephone द्वारा trans जिस कंप्यूटर पर भेजना, मतलब जिस कंप्यूटर के लिए हमने भेजा है नेटवर्किंग, तो वो कंप्यूटर के पास आते समय पर अगेन उसके पास भी एक मॉडेम है. वो मॉडेम क्या करेगा, टेलीफोन लाइन से रिसीव किया गया एनालॉग सिग्नल्स को दोबारा डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके फिर कंप्यूटर के साथ हमें यूजर के लिए डिजिटल इंफॉर्मेशन दिखाता है. So that is the function of the modem. So then friends, the modem at the receiving end converts the signal back into the format of the computer can understand. ये चीज मैंने बताया आपको, digital to analog and again analog to digital. It converts the signal back into the format of the computer can understand. That means digital format. Modem can be used as a means to connect to an ISP, internet service, or as a mechanism dialing up to a LAN. टेलीफोन LAN वो टेलीफोन डायलिंग अप है, LAN का साथ जोड़ने की वजह से via modem we are sending the signals in the network. Modems can be internal add-in expansion cards or external devices that connect to the serial or USB port of the system. modem भी है, internal भी होता थे, पहले external आता थे. एक external कार्ड को कंप्यूटर टेबल पर रख के टेलीफोन लाइन को पहले मॉडेम का साथ जोड़ते थे, फिर मॉडेम का लाइन कंप्यूटर सीपीयू के साथ जोड़ते थे, फिर इसी द्वारा इंटरनेट को फिर काम में लेते थे नेटवर्किंग में. अगर टेलीफोन लाइन कट गया है नहीं तो टेलीफोन सिग्नल्स वीक है, तो दैट टाइम दिस नेटवर्किंग इज नॉट वर्किंग इन प्रॉपर्ली. बारिश आया हुआ है, फोल्स खंबा गिर गया है, नहीं तो टेलीफोन लाइन टूट गया है, किस कारण से टेलीफोन तो रिसीव नहीं कर रहा है, तो टेलीफोन सिग्नल केबल द्वारा मॉडेम तक सिग्नल ना आने के कारण से में उस कंप्यूटर को नेटवर्क का साथ काम में नहीं ले पाते. This is internal and external modem. Next one is hub. ఇప్పుడు టైం ఎంత ఉందిరా?
ये hub is a common, ये hub is a common connection point for devices in network. modem का बाद there further introduced developed hub. तो hub का द्वारा हम आपस में कंप्यूटर्स को क्या करते थे, नेटवर्किंग के साथ जोड़ते थे, लोकल एरिया नेटवर्क वगैरह। एक ऑफिस, एक कार्यालय, एक रूम के अंदर आप लोगों ने 5 साल 2-3 साल 5 साल बैक गया होगा साइबर के पर इंटरनेट सेंटर पर, वो इंटरनेट साइबर उस रूम के अंदर एक हब डेवलप पर टाइम, फिर आपस में जितना 10 कंप्यूटर्स है 20 कंप्यूटर्स है उस हब का साथ जोड़ते थे, फिर आपस में वही एक ही टेलीफोन लाइन कनेक्शन को फिर क्या करते थे, इंटरनेट कनेक्शन को, ये 10 कंप्यूटर्स है तो 10, 20 है तो 20 को फिर शेयरिंग करते थे। contains multiple ports. When a packet arrives at one port, it is copied to the other port so that all the segments of the all the packets. तो फंक्शनलिटी बता रहे हैं। असली में एक ले आदमी के लिए, एक सिंपल साधारण स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ हब का बारे में। हब का द्वारा क्या करते थे हम, आपस में एक रूम का अंदर, एक ऑफिस का अंदर एक से अधिक कंप्यूटर्स को एक कनेक्ट नेटवर्किंग में काम में लेते थे। तो है हब में नंबर ऑफ मल्टीपल पोर्ट्स होते थे। तो यूएसबी पोर्ट मैंने आपको दिखाया है। सो आपके पास 4 कंप्यूटर्स है, 8 कंप्यूटर्स है, आपस में नेटवर्क में जोड़ना है, तो ये हब का द्वारा जोड़ते थे। ठीक है। सो ये हब पोर्ट एक सिग्नल रिसीव, एक पोर्ट के ऊपर एक सिग्नल रिसीव है तो मिलेगा, उस डाटा को सब सारे पोर्ट्स में कॉपी करते थे। फिर आपस में लाइन के अंदर जितना भी सेगमेंट्स पोर्ट जुड़ा हुआ है वो मतलब काम में लेते थे, लेकिन जो डेस्टिनेशन है वही सिस्टम गेट करते थे। दिस इज द फिजिकल मींस पिक्चर ऑफ द हब। सर इसको क्या करते थे, दीवार का साथ अटैच करके फिर ये पोर्ट्स के अंदर एक एक डिवाइस को जोड़ के फिर एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ते रहते थे। Switch. A network switch is a computer networking device that connects devices together on a computer network by using packet switching and forward data to the destination devices. See, a network switch, why you are called as a network switch? And ordinary switches are there, electrical switches. If you want to on and off, एक बल्ब फैन वगैरह तो ऑन एंड ऑफ करने के लिए स्विच को हम काम में लेते हैं, so that is another switch, electrical switch. But here a network switch, a network switch is a computer networking device that connects devices together. Devices means computer, printer, float, scanners, whatever it may be. आपस में सबको एक नेटवर्किंग के साथ जोड़ने के लिए ये नेटवर्किंग स्विच को काम में लेते हैं। इसमें क्या है, by using packet switching, that is receive, process and forward data to the destination devices. ये है मतलब इस जो इसके अंदर स्विच के अंदर जो टेक्नोलॉजी पैकेट स्विचिंग कॉन्सेप्ट का साथ ये फंक्शनिंग काम करेगा। ये तो डायरेक्ट पर्टिकुलर पोर्ट फिर भेज देगा डाटा। डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स। You look at here. I think you people are observed the switches everywhere. Small factory, industry, company, office, school. If their company or school colleges into a LAN work, then that time they are used these switches because hubs are older technology. Nowadays in place of hubs are replaced these switches. So these are the switches. Switches again need a power and switch off controlling power signal. Then after that they are connecting number of devices for such segments to that particular. If you have a color printer, then you can allot one port to the printer, scanner purpose another port. What is the advantage of that one? If you are using connecting a scanner or printer to the switch, then remaining all the workstation people are accesses this one. So friends, another details is there, but due to the lack of time, I have another further section also. 10 to 11 VBA programming schedule. I think you people are watching. If you anybody want to know the means schedule of a faculty or schedule of a lecture of a particular subject, you please watch through the
Nimi onlineadmission.in/Zoom तो साइट को पर्टिकुलर डे का अंदर क्या क्या लेक्चर्स डिलीवर हो रहा है, कौन सी टाइमिंग्स में, 9 to 10, 11 to 12, a faculty name and subject name. So through that also you can attend the different virtual classes. So those are helpful to you. मैं ये कह रहा हूँ, सपोज कि आपका पास कोई क्लास का मीटिंग आईडी नहीं पता चला है, कोई दिक्कत नहीं, आप कृपया मेहरबानी से तो nimiOnlineAdmission.in/Zoom वेबसाइट खोलिए, फिर इसके पास जाके आप रजिस्ट्रेशन के अलावा नीचे है स्टूडेंट्स के लिए ज्वाइन दिस सेशन में क्लिक करिए, फिर उस दिन का या तो एंटायर डेज का वीक का शेड्यूल आप देख सकते हैं, अनुसार आप किसी भी क्लास को आप मींस आप ग्लोबली एंटर कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 300 कैपेसिटी है रूम का, क्लासरूम का. So if you want to attend compulsory, then you first of all log in before 5 to 10 minutes, 5 minutes or 15 minutes. आप कृपया मेहरबान से 5-10 मिनट पहले ज्वाइन करिए, ताकि अगर आपको क्लास को कंटिन्यू, मेरा क्लास नहीं किसी फैकल्टी का क्लास को अटेंड कर रहे हो आप, तो कंटिन्यूसली अटेंड करना है, तो विदाउट ब्रेक, देन प्लीज लॉग इन बिफोर 5-10 minutes. Okay friend, hope that you will understand. In next class we are discussed about the in detail this network. Notes was already prepared, but time is over. We are discussed in the next class at 9 o'clock. Okay, so thank you for all of you. Thank you once again. Now at this moment I want to wind up this session.